کبھی آپ نے سوچا ہے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات اور انسان کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا وہ مسلمان ہے، لیکن یہ آدھا ادھورا ہے، آدھا ادھورا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کہہ دیا وہ مسلمان ہے، ایک نہ ایک دن وہ جنت ضرور جائے گا، آدھا ادھورا ہے۔ اصل میں ایمان مفصل ہے جو میں نے آیت کے بعد پڑھی ہے، 7 چیزوں پر ایمان لانا ہے، صرف اللہ پر، اللہ کے رسول پر نہیں، 7 چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ ان 7 چیزوں میں اگر ہمارا ایمان ہے، اس پر عمل ہے، تو ہمارے لیے اولین مرحلہ میں جنت ہے، اولین مرحلہ میں ہمارے لیے راحت ہے، الفت ہے، آرام ہے۔ اگر صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لے رہے ہیں، غیر قوم سے 1000 مرتبہ، لاکھوں مرتبہ، کروڑوں مرتبہ آپ بہتر ہے، لیکن اصل میں 7 چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ سب سے پہلے آمنت باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ کبھی دیکھا اللہ تعالیٰ کو؟ نہیں دیکھا، اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو، پھر بھی مان رہے ہیں فلانی جگہ پر اللہ تعالیٰ ہے، ایسا کوئی سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ ذات واجب الوجود ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، وہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ پہلا بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے، سب چیز ان کے کنٹرول میں ہے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، وہ خالق ہے، پہلے سرے طور پر پیدا کرنے والا ہے، بعد میں پیدا کرنے والا ہے، ظاہری چیز کو پیدا کرنے والا ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے، وہ ہے اللہ۔ اور بہت ساری آیتیں ہیں، یہ اللہ ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، جب دنیا میں کچھ نہیں تھا وہ تھا، جب کچھ نہیں رہے گا وہ رہے گا۔ قیامت آئے گی، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، قیامت آئے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، 4 فرشتے رہیں گے، بڑے بڑے فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہم السلام، یہ 4 بڑے بڑے فرشتے ہیں۔ قیامت اس دنیا کو ختم کرنے کے لیے، ڈیمولیشن کے لیے ہے قیامت، ڈیمولیشن کا نام ہے، پوری دنیا کو تباہ تتر بتر کر دے گا اللہ تبارک تعالیٰ۔ 4 بڑے فرشتے رہیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبرائیل بتاؤ کون کون اب زندہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ ہے اور ہم 4 ہیں، آپ ہے ہم 4 ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا، ملک الموت کو نہیں، اسرائیل علیہ السلام، 4 بڑے فرشتوں کے 4 بڑے بڑے کام۔ جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے وحی لانا، پیغام، اللہ کے پیغام فرشت اس کے رسولوں تک لانا۔ میکائیل علیہ السلام کا کام بارش برسانا۔ اسرافیل علیہ السلام کا کام سور پھونکنا، قیامت کے دن سور پھونکیں گے، ایسے سور لے کر کے منہ کے پاس رکھے ہوئے ہیں، بچے بجاتے ہیں نا پونگے وغیرہ، وہی ایسے ہی ہے، یہاں منہ کے پاس رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، حکم ہوتے ہی پھونک ماریں گے۔ یہ اتنا خطرناک آواز ہوگا اس سور میں، اس آواز سے یہ دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ اور اسرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ روح نکالنا، بدن سے نچوڑ کر کے روح نکالتے۔ روح کیسے نکالتے اللہ تعالیٰ؟
ऊपर से निचोड़ते हैं। इजराइल अलैहिस्सलाम निचोड़ करके पैरों के तरफ से आपके हमारे हम सब के रूह निकालने वाले। ठीक है ना। ये 4 फरिश्तों के बड़े बड़े काम। ये 4 फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह तबारक तआला आप हैं और हम 4 हैं। इजराइल अलैहिस्सलाम कौन है? ये मलकुल मौत, मौत का सौदागर, मौत से खेलने वाले, हर एक को मौत का मजा सिखाने वाले इजराइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला हुक्म देगा इन तीनों की भी रूह निकाल लो। किनके? जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील, इन तीनों की भी रूह निकाल लो। इन तीनों के रूह को निकालेंगे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत मलकुल मौत। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे इजराइल अब बताओ कौन जिंदा है? इजराइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत, मौत का सौदागर, मौत से खेलने वाला फरिश्ता कांप रहे होंगे, कांपते कांपते कहेंगे अल्लाह आप है और मैं हूं। फिर अल्लाह तबारक तआला क्या कहेगा? अल्लाह तबारक तआला अपने हाथ से इजराइल अलैहिस्सलाम के रूह को निकालेंगे। ये दाहिना पैर इजराइल अलैहिस्सलाम के सीने में रख करके इस तरीके से हाथ से इजराइल अलैहिस्सलाम के हाथ से रूह निकालेंगे। निकालने के बाद अल्लाह तबारक तआला कहेगा कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। जो भी पैदा हुआ हर एक को फना होना है, जितने जानदार थे सबको फना होना है, मैं बाकी रहने वाला हूँ, मेरी जात हमेशा बाकी रहने वाली है। जब कुछ नहीं था अल्लाह ताला था, जब कुछ नहीं रहेगा अल्लाह ताला रहेगा। ठीक है ना। तो अल्लाह तबारक ताला वो जात है, जाते वाजिबुल वजूद। हमने अल्लाह को नहीं देखा लेकिन हमारा दिमाग कह रहा है, हमारा माइंड कह रहा है कोई तो है जो ये सारी चीजों को चला रहा है, वरना ऐसे तो नहीं चलता। एक स्कूल के लिए प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल होता है, टीचर्स होते हैं, तब जाकर के स्कूल चलता है ना। ऐसे ही चल जाता नहीं चलता। इसके निजाम को चलाने के लिए इतने सारे जिम्मेदार होते हैं। तो इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे इंसान हैं। कितने इंसान है दुनिया में? अभी फिल वक्त नहीं गिन सकते इंसान को। 8 अरब इंसान है, 800 करोड़, 8 अरब इंसान अभी दुनिया में है। पूरी दुनिया में 8 अरब इंसान है। इन सारे इंसानों के खिलाने पिलाने सुलाने सारी जिम्मेदारी अल्लाह तबारक तआला उठा रहा है। अगर अल्लाह तबारक तआला की जात ना हो ऐसा कैसा हो सकता है? तो कोई है एक जो चला रहा है इस निजाम को, उसी जात का नाम अल्लाह है। आमनतु बिल्लाह, सबसे पहली चीज अल्लाह ताला पर ईमान लाना। दूसरी चीज आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही। रसूल ये अल्लाह तबारक व तआला के नूरानी फरिश्ते हैं। नूर से इनको बनाए गए। हमको किससे बनाए गए? मिट्टी से। हमको मिट्टी से बनाए गए। जिन्नात को आग से बनाए गए, हमको मिट्टी से बनाए गए। फरिश्तों को नूर से अल्लाह तबारक तआला बनाया, नूरानी मखलूक। फरिश्तों की खासियत है वो कभी गुनाह नहीं करते। ठीक है ना। हमारी खासियत है, जिन्नात की खासियत है वो ज्यादा गुनाह करते। जिन्नात में से शैतान है ना, वो ज्यादा गुनाह करते। हमारी खासियत है अच्छाई भी करते गुनाह भी करते, गुनाह करने के बाद हम तौबा भी करते। इंसान की खासियत है। तो फरिश्तों की क्या खासियत है? वो कभी गुनाह नहीं करते। ला यासूना मा अमरहुमुल्लाह, कुरान कहता है वो अल्लाह तबारक तआला जो हुक्म देता है उसके खिलाफ वो नहीं करते हैं। यफ़अलूना मा युअमरून, जो हुक्म अल्लाह ताला का मिलता है उसी को वो करते हैं। ठीक है ना। ये है कौन? फरिश्ते। इन पर ईमान लाना, फरिश्ते बरहक है। फरिश्ते कितने हैं? फरिश्ते कितने हैं? फरिश्ते नहीं 4 मशहूर फरिश्ते हैं। फरिश्तों की तादाद कितने ये नहीं मालूम, ये सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम। फरिश्तों की तादाद कितने हैं नहीं मालूम, सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम। और फरिश्ते दुनिया में 2 मरतबा आते हैं, हर दिन 2 मरतबा आते हैं। उनकी ड्यूटी चेंज होती है असर के वक़्त और फजर के वक़्त। जो फरिश्ते फजर के वक़्त अब आए वो दुनिया के निज़ाम को देख रेख कर रहे हैं, इंसान की हिफाजत कर रहे हैं। इनकी ड्यूटी चेंज होगी फिर असर के वक़्त, असर के वक़्त फिर दूसरे फरिश्ते आएंगे। इस तरीके से
बहुत सारे फरिश्ते ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक तआला के लिए रुकू कर रहे हैं, अब तक रुकू ही कर रहे हैं। बहुत सारे फरिश्ते ऐसे हैं जो अल्लाह को सजदा कर रहे हैं, सजदा ही करते जा रहे हैं। बहुत सारे फरिश्ते ऐसे जो क़याम कर रहे हैं, क़याम में ही है। बहुत सारे फरिश्ते हैं जो काबतुल्लाह के पास चक्कर लगा रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं। बहुत सारे फरिश्ते ऐसे जो बैत मामूर के पास चक्कर लगा रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं। उनकी तादाद कितनी है किसी को नहीं मालूम सिवाय अल्लाह ताला के। ये नूरानी फरिश्ते, ये नूरानी मखलूक। दो चीज हुई, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, कुतुब किताब, बुक्स, आसमानी किताबें, आसमानी किताबें। अल्लाह तबारक व तआला ने 104 आसमानी किताबें, छोटी बड़ी आसमानी किताबें 104 नाजिल फरमाया। कितनी? 104। 4 मशहूर है, 104 है। 104 आसमानी किताबें नाजिल किया है। उन 4 में से बड़े, उन 104 में से 4 मशहूर है। वो 4 जो मशहूर है कौन कौन है? वो तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। माशाअल्लाह, ये 4 मशहूर किताबें हैं। इन किताबों पर ईमान लाना, तौरात, इंजील, ज़बूर, अगरचे आज असली सूरत में नहीं है, उसमें बिगाड़ पैदा हो गया। उनके उलमा ने उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली कर दिया, लेकिन चूंकि वो आसमानी किताबें हैं उसको हमें मानना है, उस पर हमें ईमान लाना है, ठीक है ना। कुरान करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात एक साथ नाजिल हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कोहे तूर पे आइए, वहाँ पे नाजिल कर दिया। इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया, एक साथ पूरी किताब दे दिया, ये लीजिए इस पर अमल कीजिए। ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ। ज़बूर किस पर नाजिल हुआ? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। तौरात किस पर नाजिल हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम पर। इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर। ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर। और कुरान मजीद फुरकान हमीद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। लेकिन कुरान करीम उस तरीके से नाजिल नहीं हुआ जिस तरीके से तौरात, इंजील, ज़बूर नाजिल हुआ था। तौरात, इंजील, ज़बूर एक साथ नाजिल हुआ। कुरान करीम 23 साल में, 23 ईयर में नाजिल होता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में नबी बने। कितने साल की उम्र में नबी बने? 40 साल। नबी बनने के बाद मक्का में 13 साल रहे। कितने साल रहे? 13 साल। 40 और 13 कितने हुए? 53। यहाँ 13 साल नाजिल होता रहा कुरान करीम। कहाँ पे? मक्का में। मक्का में 13 साल तक कुरान करीम नाजिल होता रहा, नबूवत के बाद से लेकर के हिजरत से पहले पहले। फिर हिजरत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए। मदीना में कितने साल रहे? 10 साल। 10 साल रहे मदीना में। कितने साल रहे? 10 साल। 53 और 10 ईयर्स कितने हुए? 63। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही उम्र है ना, 63 ईयर्स के है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहाँ 10 सालों तक नाजिल होता रहा कुरान करीम। सफर में भी नाजिल हुआ, हजर में भी नाजिल हुआ, घर में नाजिल हुआ, बाहर नाजिल हुआ, नमाज पढ़ते पढ़ते नाजिल हुआ, तिलावत करते करते नाजिल हुआ, खाना खा रहे थे नाजिल हुआ, सो रहे थे नाजिल हुआ। हर हाल में कुरान करीम नाजिल होता रहा। ये कुरान करीम की खुसूसियत है। और कुरान करीम के बारे में बताता हूँ। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने 7 मंजिल रखा है। कितने मंजिल है? 7 मंजिल। ये मंजिल क्या है? ये बड़ा स्टॉपिस, इसको क्या बोलते हैं? जंक्शन। जंक्शन बोलते हैं ना, बड़ा स्टॉपिस रहता है रेलवे स्टेशन का, सबसे बड़ा जो स्टॉपिस रहता है उसको क्या बोलते हैं? जंक्शन। जंक्शन बड़ा स्टॉपिस। वहां आकर के गाड़ियां रुकती है, फिर वहां से गाड़ियां बन के आगे जाती है, उसको जंक्शन बोलते हैं। सहाबा किराम 7 दिन में कुरान करीम खत्म करते थे, इसलिए 7 मंजिल। कुरान करीम में 14 सजदे हैं। कितने सजदे हैं? 14। वो आयतें अगर आए तो उन आयतों को पढ़ने के बाद आपको सजदा करना है। 14 सजदे। कितने सजदे हैं? मंजिल कितने हैं? सजदे कितने हैं? 14। पारे कितने हैं? ये सबको मालूम अल्हम्दुलिल्लाह। 30 पारे हैं कुरान करीम में। 30 पारे कुरान करीम में, 30 पारे। अच्छा, कुरान करीम में कितनी सूरतें हैं? 114। 114 सूरतें हैं टोटल। कुरान करीम में 114 सूरतें हैं।
रुकू कितने? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से वलद्दालिन एक रुकू, अलिफ लाम मीम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून एक रुकू। रुकू कितने हैं? 540। 540 रुकू है। कितने रुकू है? 540। मंजिल कितने हैं? 7। सजदे कितने हैं? पारे कितने हैं? सूरा कितने हैं? 114 और रुकू 540। ये कुरान करीम के बेसिक नॉलेज है, हर एक को मालूम होना चाहिए। कितने रुकू है? 540। आयतें कितने हैं? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 6666 6666 इतनी आयतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक आयत, अर्रहमान रहीम एक आयत, मालिक यौमिद्दीन एक आयत। ऐसे जो गोल गोल निशान आते हैं ना, उसको आयत बोलते हैं। ये कुरान करीम की खासियत है। दिगर आसमानी किताबों की इतनी खासियत नहीं थी, कुरान करीम की इतनी सारी खासियत है। और दिगर आसमानी किताबों के हाफिज नहीं हुआ करते थे, कुछ कुछ आयतें याद कर लेते थे, लेकिन कुरान करीम के हजारों हाफिज है कुरान करीम के। अगर सपोज कुरान करीम के जितने भी नुस्खे हैं दुनिया में सब जला दिया जाए, पूरे जला दिया जाए या पानी में बहा दिया जाए, आने वाहिद में थोड़ी देर में वैसे कि वैसे कुरान करीम फिर से तैयार हो सकती है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ुन। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने कुरान को नाजिल किया है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो कुरान करीम को अल्लाह ताला ने सिर्फ नुस्खों में नहीं रखा, कुरान करीम को अल्लाह ताला ने क्या किया? हमारे सीने में भर दिया। लाखों हाफिज कुरान है जिनको हूबहू कुरान करीम की आयत याद है। बास बच्चे तो ऐसे हैं रमजान में एक दिन में एक रात में पूरे कुरान सुनाते हैं। ये कुरान करीम की खासियत है। छोटी से छोटी बुक आप याद करें, छोटी से छोटी बुक हूबहू आप याद नहीं कर सकते। ये कुरान करीम मौजज़ा है, समझ रहे ना? मौजज़ा है ये कुरान करीम जो हूबहू अल्फाज बेअैनी सेम टू सेम उसको याद कर लेते। ये आसमानी किताबें, इन पर ईमान लाना। आमंत बिल्लाही मलाइकतिही कुतुबिही रुसुली। रसूल से मुराद रसूल, पैगंबर, मैसेंजर। दुनिया में 1,24,000 अंबिया किराम आए, 1,24,000 अंबिया किराम आए। उन सब पर ईमान लाना और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, उन सब पर भी हमारा ईमान है। वो रसूल बरहक है। यहूदियों को गाली दे सकते आप, यहूदियों को बुरा भला कह सकते, यहूदियों के जो रसूल है उसको बुरा भला नहीं कह सकते। क्रिश्चियन को आप बुरा भला कह सकते, क्रिश्चियन के जो रसूल है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनको बुरा भला नहीं कह सकते। वो हमारे भी रसूल है, हमारे भी रसूल है। वो हमारा 1,24,000 अंबिया किराम पर ईमान। तो 4 चीजें हो गई। क्या हो गई? आमंतु बिल्लाहि, अल्लाह पर ईमान लाना, मलाइकती, फरिश्तों पर ईमान लाना, कुतुबी, आसमानी किताबों पर ईमान लाना, रसूली, रसूलों पर ईमान लाना। रसूल अल्लाह के मैसेंजर, इनका काम क्या होता है? दुनिया में जब बुराई ज्यादा हो जाती है अल्लाह ताला एक पैगंबर उन्हीं में से पैदा फरमाते हैं, ठीक है ना? वो पैगंबर क्या करते हैं? उनको रोकते हैं। और पैगंबर को अल्लाह ताला मौजज़ा अता फरमाते हैं। मौजज़ा मिरेकल, ऐसी चीज जिसको अकल तस्लीम ना करे। नाक का काम है आवाज निकालना, आवाज को बुलंद करना। फैन का काम है हवा देना, है ना? फोन का काम है एक जगह से दूसरी जगह बात करना। गाड़ी का काम है एक जगह से दूसरी जगह चल के जाना। अगर पत्थर आवाज करने लगे, पत्थर का काम आवाज करना है? नहीं, पत्थर यूं ही पड़ा रहता है। पत्थर अगर आवाज करने लगे, कलमा पढ़ने लगे, झाड़ अगर चलने लगे, मुर्दा अगर जिंदा हो जाए, सूरज चांद अगर 2 टुकड़ा हो जाए, तो ये क्या होता है? मौजज़ा के कबिल में आता है, मिरेकल के कबिल में आता है। ये अल्लाह तबारक तआला अता करते हैं रसूल को ताकि सामने वालों को दिखाए कि
ये हकीकत में रसूल हैं। तो रसूलों पर ईमान लाना हम सब की जिम्मेदारी फरीजा है। ये 4 चीजें हुई। और 5वीं चीज क्या हुई अब तक? आमंतु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाना। नंबर 2 फरिश्तों पर ईमान लाना। नंबर 3 आसमानी किताबों पर ईमान लाना। नंबर 4 रसूलों पर ईमान लाना। आमंतु बिल्लाहि मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर। आखिरत, जजमेंट के दिन पर, कयामत के दिन पर, आखिरत के दिन पर मरना है, मर करके अल्लाह के सामने जाना है। दुनिया में जो पैदा हुआ उसे मरना है, लेकिन ये ख्याल करना जो मर गया, गल गया, सड़ गया, खत्म हो गया, ये गलत है, सरासर गलत है। जो अल्लाह तबारक व ताला हमें एक कतरा से पैदा कर सकता है, वो अल्लाह ताला दोबारा हमको पैदा करने में क्या मुश्किल है उसके लिए? नहीं। और दुनिया में जो जैसा करेगा उसकी जजा उसको मिलना है। एक शख्स चोरी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, और एक शख्स रात भर अल्लाह ताला के लिए इबादत कर रहा है, दोनों बराबर है? नहीं हो सकता है दोनों बराबर ना, दोनों बराबर नहीं हो सकता है। एक चोरी कर रहा है, गलत कर रहा है, एक इबादत कर रहा है, अच्छा कर रहा है। इबादत करने वाले को उसका अच्छाई का बदला मिलना चाहिए, चोरी करने वाले को उसकी सजा, उसके जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। ये हमारा अक्ल भी कह रहा है। तो दुनिया में सजा मिलना मुहाल है। बाज को सजा मिलती है। बड़े बड़े लोग क्या करते हैं? पैसे देकर, रिश्वत देकर के बच जाते हैं। वकील को खरीद लेते हैं, जज को खरीद लेते हैं, अदालत को खरीद लेते हैं, बच जाते हैं। मुजरिम बच जाता है, जो बेचारे जो मुजरिम नहीं होते हैं उसको फंसा दिया जाता है। तो यहाँ आपको इंसाफ मिलना मुश्किल है, इसलिए अल्लाह ताला ने एक इंसाफ का दिन रखा है, उसी का नाम है यौम आखिरत, डे ऑफ जजमेंट डे। तो उस दिन पर ईमान लाना कि हमको मरना है, मर करके दोबारा जिंदा होना है, अल्लाह के सामने जाना है, जो हमने दुनिया में किया था उसका जजा या सजा हमको वहां पर मिलना है। उसमें से सबसे पहली मंजिल है कब्र। दुनिया में आप जैसे करेंगे कब्र में उसी तरीके से पेश आएंगे। कयामत से पहले की जो जिंदगी है उसका नाम है आलम बरज़ख। कयामत से पहले, मौत के बाद। अरे हम पैदा हुए तो मरना है ना, मरने के बाद अभी तो कयामत नहीं आ जाती ना, अभी बहुत सारी अलामतें बाकी है। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दज्जाल आएगा, दाब्बतुल अर्ज़ आएंगे, याजुज माजुज आएंगे, सूरज पूरब की तरफ बजाय मगरिब की तरफ से निकलेंगे। ये सारी अलामतें भी बाकी है। पता नहीं कितने हजार साल अभी लग जाएंगे, है ना। हमारी उम्र 1000 साल तो नहीं है, 60 साल, 70 साल, 80 साल। तो मरने के बाद से लेकर कयामत तक की जो जिंदगी है इसका नाम है आलम बरज़ख। इस जिंदगी में वैसा ही पेश आने वाले हैं हमारे साथ फरिश्ते जैसा हम दुनिया में कर्म करेंगे। अच्छे अमाल करेंगे हमारे लिए अच्छा ही है, बुरे अमाल करेंगे कब्र को हमारे लिए जहन्नम बना दिया जाएगा। तो नेक अमाल करना। एक छोटा सा मक्खी भी अगर काट ले तो हम परेशान हो जाते हैं ना। रात को सोते वक्त मक्खी काटते कि अम्मी अलाउट ला के लगाओ, मक्खी मच्छर काट लो, बोलते नहीं बोलते। मच्छर काटे तो परेशान हो जाते हैं, अलाउट लगाते हैं, मच्छर बत्ती लगाते हैं, है सही है नहीं है। तो सांप बिच्छू काटेगा तो हम बर्दाश्त कर पाएंगे? इतने ज्यादा हमको मारा जाएगा, इतने हंटर लगाया जाएगा, उसको बर्दाश्त कर सकते हैं? कोई अगर एक हमको गाली दे दिया, हमको माँ बहन की गाली दे दिया तो हमको बर्दाश्त नहीं होता है, आपे से बाहर हो जाते हैं हम। होना भी चाहिए, ठीक है ना। तो वहां पर जब हम दुनिया में बद आमाल करके जाएंगे, वहां पे जो हमारी इस तरीके से साथ पेश आएंगे फरिश्ते, हमको मारा जाएगा, काटा जाएगा, हमको आग में दहकाया जाएगा, बर्दाश्त कर सकते नहीं कर सकते। तो वहां के लिए यहाँ तैयारी करना है।
वहाँ के लिए आपको यहाँ तैयारी करना है। और एक बात याद रखो, इंसान मुसाफिर है, मुसाफिर, सफर करने वाला। सफर करने वाले को क्या बोलते हैं? मुसाफिर, है ना। इंसान मुसाफिर है, अव्वल से लेकर के अब तक सफर कर रहा है और सफर करेगा। इनके सफर के 7 मरहले हैं। कितने स्टॉपिस है? 7 स्टॉपिस है। याद रखो, बात को याद रखो। कितने स्टॉपिस है? 7 स्टॉपिस है सफर के। हम कहाँ पे थे सबसे पहले? आलम अरवा में। तमाम रूहों को अल्लाह ताला एक जगह रखा है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी पैदा होने वाला इंसान, कयामत से पहले पहले आखिरी पैदा होने वाला इंसान, सारे रूहों को अल्लाह ताला एक जगह रखा है। उस मकाम का नाम है आलम अरवा। पहले हम वहाँ थे, ठीक है ना। वहाँ से सफर करके अल्लाह तबारक ताला ने क्या किया? हमें बाप के सुल्ब में रखा। सफर का दूसरा मरहला, दूसरा स्टॉपिस। पहला स्टॉपिस क्या है? आलम अरवा। दूसरा स्टॉपिस बाप के सुल्ब, बाप के सुल्ब में हम आए। तीसरा स्टॉपिस बाप के सुल्ब से फिर मुंतकिल होकर के हम क्या करें? माँ के रहम में गए, माँ के पेट में। ये हमारे सफर के तीसरा मरहला, तीसरा स्टॉपिस। तीसरा स्टॉपिस क्या है? माँ का पेट। पहला क्या है? आलम अरवा। दूसरा बाप का सुल्ब। तीसरा मरहला माँ का पेट। हर एक पैदा हुए ना, इसमें हंसने की क्या बात है? ताज्जुब होने की क्या बात है? आप भी पैदा हुए, मैं भी पैदा हूँ, हमारे माँ बाप भी पैदा हुए। बाप के सुल्ब से माँ के रहम में हम आए। ये तीसरा स्टॉपिस है। चौथा स्टॉपिस माँ के पेट से ये दुनिया, जिस दुनिया में हम पैदा हुए, ये चौथा स्टॉपिस है। 3 सफर जो शुरू के कराए गए, उनका मकसद था दुनिया, ठीक है ना, दुनिया में आना। अब आइंदा जो फिर 3 सफर है ना, आइंदा जो ये चौथा स्टॉपिस है ना दुनिया, इसके बाद फिर 3 स्टॉपिस है। उन 3 स्टॉपिस का जो मफहूम है, उनका मदार इस पर है, चौथे स्टॉपिस पे है। चौथे स्टॉपिस में आप जैसा करेंगे, जो करेंगे, आइंदा 3 स्टॉपिस के साथ वैसे ही आपके साथ किया जाएगा। तो चौथा स्टॉपिस दुनिया। पहला स्टॉपिस क्या है? आलम अरवा। दूसरा बाप का सुल्ब। तीसरा स्टॉपिस माँ का रहम। चौथा स्टॉपिस दुनिया। 5वां स्टॉपिस कब्र। 5वां स्टॉपिस क्या है? कब्र है। मर करके हम कहाँ जाते हैं? कब्र में हमको दफनाया जाता है। 5वां स्टॉपिस कब्र में हमारे साथ क्या पेश आने वाले हैं? चौथे स्टॉपिस में तुमने क्या किया है? नेक अमाल किया है, फरिश्ते तुम्हारे साथ वाह वाह करेंगे। अगर तुमने किसी को सताया, फरिश्ते हंटर मारेंगे। अगर तुमने किसी को मदद की, किसी की मदद की, किसी को तुमने दोस्त बनाया सिर्फ खालिस अल्लाह ताला के लिए, माँ बाप के साथ अच्छे तरीके से पेश आया, असतज़ा के साथ अच्छे तरीके से पेश आया, अपने बड़ों की इज्जत की, छोटों पर शफकत की, तो चौथा स्टॉपिस के बाद जो 5वां स्टॉपिस आपका लग रहा है ना, इसमें आपके लिए अच्छा ही है। और खुदा ना खास्ता यहाँ पे अगर आपने बुराई किया है तो वहाँ फंसने वाले हैं, वहीं से ही आपकी कुटाई शुरू होने वाली है। 5वां स्टॉपिस कब्र। 6ठा स्टॉपिस मैदान महशर। 6ठा स्टॉपिस क्या है? मैदान महशर। कयामत कायम होगी। कयामत कायम होने के बाद पहली मर्तबा सूर फूकेंगे, सब मर जाएंगे। जितने जानदार है, कुल जितने जानदार है, हर एक को मौत आकर के दबोच लेगी। सब मर जाएंगे, सब नेस्त व नाबूद हो जाएंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का मजा अल्लाह ताला चखा देगा। फरिश्ते, इंसान, जिन्नात, हैवानात, नबातात, जानवर, कीड़े मकोड़े, जिसके अंदर जर्रा बराबर भी जान है, सबको अल्लाह ताला मौत की नींद सुला देगा। फिर सबसे पहले अल्लाह तबारक ताला, सबसे आखिर में किसकी मौत हुई थी? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैं, इस्राइल अलैहिस्सलाम, मलकुल मौत, मौत का सौदागर। सबसे आखिर में उसकी मौत होती है। किसके? इस्राइल अलैहिस्सलाम के। सबसे पहले अल्लाह तबारक ताला फिर दोबारा जो जिंदा करेगा,
سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گا. اس کو اسرافیل علیہ السلام کو. سب سے آخر میں موت اسرائیل علیہ السلام کی. پھر دوبارہ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو, سور بھونکنے والے اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے. اسرافیل علیہ السلام کو اب کہیں گے کہ دوبارہ سور بھونکو. اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور بھونکیں گے, ٹھیک ہے نا. دوبارہ جب اسرافیل علیہ السلام سور بھونکیں گے, تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان, تمام جنات اپنے اپنے قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے, ایسے ہی مٹی جھاڑتے ہوئے, خبر ہم کو کچھ لگ جائے, جا رہے اچانک ہم کو مٹی گری تو کیسے ہم جھاڑتے ہیں نا, ایسے قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے میدان محشر کی طرف جائیں گے. میدان محشر کی طرف سب تیزی کے ساتھ جائیں گے, تیزی کے ساتھ جائیں گے, ویسے رہیں گے جیسے ہم پیدا ہوئے, اسی حالت میں رہیں گے. کفن تو قبر نے کھا لیا, مٹی نے کھا لیا, بالکل اسی حالت میں رہیں گے. کوئی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتے, اتنا سب کوئی پریشان رہیں گے, میرا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا, نفسی 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 نفسی. آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی میرا کیا ہوگا, نوح علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی میرا کیا ہوگا, ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی میرا کیا ہوگا, اسماعیل علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی میرا کیا ہوگا, موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی میرا کیا ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی میرا کیا ہوگا, داؤد علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی میرا کیا ہوگا, یوسف علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی میرا کیا ہوگا. سب کو اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی. یہ انبیاء کرام ہے, یہ جب اپنے بارے میں سوچ رہے ہوں گے, بتاؤ ہم کہاں ہوں گے. تو کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا, بالکل پریشان رہیں گا, میدان محشر کی طرف جا رہے گے. وہاں جا کر کے سب ٹھہریں گے, وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ حساب و کتاب کرے گا. اور میدان محشر میں اللہ تعالیٰ غصے کے حالت میں ہوں گا. یاد رکھو, انسان غصے میں, جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو بالکل یا تو برابر فیصلہ کرتا ہے یا بالکل خلاف فیصلہ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ خلاف فیصلہ تو نہیں کرے گا, برابر سرابر فیصلہ کرے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی کرے ہوں گے آپ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب لیں گا. ذرہ برابر آپ نیکی کیے ہوں گے, بدی کیے ہوں گے, اس کا بھی حساب لیں گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن حساب کریں گا. چھٹا سفر, چھٹا سفر کا چھٹا مدار, چھٹا اسٹاپس کیا ہے, چھٹواں اسٹاپس کیا ہے, میدان محشر. پہلا کیا تھا, یاد نہیں رکھ رہے, عالم ارواح. دوسرا باپ کا صلب. تیسرا ماں کا رحم, ماں کا پیٹ. چوتھا دنیا. پانچواں قبر. چھٹا میدان محشر. میدان محشر میں حساب کتاب ہونے کے بعد آپ کا ساتواں آخری اسٹاپس جو ہوگا وہ ہوگا جنت یا جہنم. آخری اسٹاپس آپ کا کیا ہوگا, جنت یا جہنم. یہ آخری اسٹاپس ہوگا. اگر نیک ہے, مومن ہے, مسلم ہے تو آپ کا اسٹاپس ہوگا جنت, ٹھیک ہے نا, پیراڈائز. اور اگر آپ کے خدا نخواستہ اعمال صحیح نہیں ہے, آپ غیر مومن ہے, تو آپ کا آخری اسٹاپس ہوگا دوزخ, نار, جہنم. یہ انسان مسافر ہے, سفر کر رہا ہے, ابھی سفر میں ہے اور آئندہ بھی ہم سفر کرتے ہی جائیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ 7 اسٹاپس ہے. تو بات کہاں سے چل رہی تھی کہ ہمارا کتنی چیز پر ایمان ہے, 7 چیزوں پر ایمان ہے. سب سے پہلا اللہ تبارک تعالیٰ پر, دوسرا فرشتوں پر, تیسرا آسمانی کتابوں پر, چوتھا رسولوں پر, پانچواں پتا ہی نہیں میں ابھی, پانچواں ہے تقدیر پر. تقدیر پر پانچواں کیا ہے, تقدیر پر ایمان لانا. خیر اور شر اللہ کی طرف سے, اچھائی برائی اللہ کی طرف سے, نیکی بدی اللہ کی طرف سے, جنت جہنم اللہ کی طرف سے. کل کیا ہونے والا ہے اللہ جانتا ہے, کل کیا کرنے والے اللہ جانتا ہے, کل کون پیدا ہونے والا ہے اللہ جانتا ہے, کل کون مرنے والا ہے اللہ جانتا ہے.
کل کیا ہونے والا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کہاں پر بارش برسانا ہے، کتنی بارش برسانا ہے، کتنے مقدار میں برسانا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کون کہاں مرے گا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا کرنے والے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آپ ارادہ کر رہے ہیں اچانک مجھے کل جو ہے نا اسکول جانا ہے، ایگزام ہے، میرا ٹیسٹ ہے، جا کر کے لکھنا ہے، رات بھر تیاری بھی کیا، صبح کے وقت طبیعت خراب ہو گئی، آپ کے ارادہ دھرا کے دھرا رہ گیا. اللہ تبارک تعالیٰ جانتا تھا کہ آپ کا کل یہ ہونے والا ہے. ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں ہو جاتا ہے کچھ، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. آئندہ کیا ہونے والا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے. اسی کا نام ہے تقدیر، کہ ہمارے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ متعین کرتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن ہمیں ایک چیز کرنے کا حکم دیا ہے، ایک نہ کرنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے نا، دنیا میں دو قسم کی چیزیں ہیں نا، ایک کرنے کا حکم دیا ہے، ایک نہ کرنے کا حکم دیا ہے. جن کو کرنے کا حکم دیا ہے ہر حال میں کیا جائے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، بڑوں کی عزت کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنا ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا ہے، والدین کے حقوق ادا کرنا ہے، یہ کرنا ہے. نماز نہیں چھوڑنا ہے، روزہ نہیں چھوڑنا ہے، زکوٰۃ ہر حال میں دینا ہے، زکوٰۃ کا انکار نہیں کرنا ہے، کسی کو مارنا نہیں ہے، کسی کو گالی نہیں دینا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنا ہے، کسی کو ستانا نہیں ہے، چوری نہیں کرنا ہے، بدمعاشی نہیں کرنا ہے، دغا بازی نہیں کرنا ہے، غنڈہ گردی نہیں کرنا ہے. یہ نہ کرنے کا حکم دیا ہے، یہ کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کیا جائے. جن کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے اس سے روکا جائے. اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے تو ہم ایک اچھا پکا سچا انسان، ایک ذمہ دار انسان، ایک ذمہ دار ناگرک، ایک ذمہ دار امتی ہے. اگر ان چیزوں کا ہم خیال نہیں کرتے ہیں، ان چیزوں پر ہمارا عمل نہیں ہے، تو ہم صرف مطلبی انسان ہیں. اپنے نفس کے لیے تو جانور بھی جیتے ہیں، اپنے لیے تو جانور بھی جیتے ہیں. تو ہم کو صرف اپنے لیے نہیں جینا ہے. ہم ایسے نبی کی امتی ہیں، ایسے نبی کی ہم امتی ہیں جو خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کو کھانے کی تلقین کیے، خود اپنے پیٹ میں پتھر رکھ کر کے دوسروں کو کھلائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو مدینے کے پہاڑ، مکہ کے پہاڑ سونا بن کر کے آپ کے پیچھے پھرا کرتا. سمجھ رہے نا؟ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو چنا، فقر و فاقہ کو چنا. کیوں؟ تاکہ میری امت پریشان نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اگر مال دولت دیا ہے آپ کو، اطرانا نہیں، تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنا، بیجا جگہ پر استعمال نہیں کرنا، ان کو اسی مقام پر استعمال کرنا جہاں پر استعمال کرنے کے لیے کہا گیا ہے. کہاں پہ؟ ماں باپ پر خرچہ کرو، رشتہ داروں پر خرچہ کرو، دوست احباب پہ خرچہ کرو، اچھے کام میں خرچہ کرو، حج کرنے میں خرچہ کرو، عمرہ کرنے میں خرچہ کرو، ان چیزوں میں خرچہ کرو، تعلیم میں خرچہ کرو، تربیت میں خرچہ کرو، دینی کاموں میں خرچہ کرو، رفائی کاموں میں خرچہ کرو. ان جگہ پر خرچہ کرو. غلط جگہ پر خرچہ کرو گے پھر آپ کی پکڑ ہے. حالانکہ مال آپ کا ہے، کمایا آپ نے، اس کے لیے پسینہ آپ نے بہایا، لیکن اس کے باوجود آپ اگر غلط جگہ پر استعمال کریں گے پھر آپ کی پکڑ ہے. تو تقدیر، چھٹی چیز کیا ہے؟ تقدیر. اچھا برا دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اچھا تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے، برا کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہے نا، برا کیوں پیدا کیا ہے؟ نیکی کے ساتھ بدی کیوں رکھا ہے اللہ تعالیٰ؟ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نیکیاں ہی صرف پہ رکھتا تھا. ہمارے دماغ میں صرف یہی بھر دیتا تھا اللہ کہ تم کو نماز پڑھنا ہی ہے. یہ برائیاں کیوں رکھا ہے اللہ تعالیٰ؟ آزمائش، آزمائش آپ کے لیے آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اگر صرف اللہ تعالیٰ نیکیاں رکھ دیتا، جیسے فرشتے، ان کو گناہ معلوم ہی نہیں ہے گناہ کیسا ہوتا ہے.
गुनाह किसको कहा जाता है फरिश्ते को मालूम ही नहीं है, जानते नहीं है वो। हम जानते हैं गुनाह किसको कहा जाता है। अगर खुदा ना खास्ता गुनाह हो जाए फौरन हम तौबा करते हैं, हम रुजू होते हैं अल्लाह ताला की तरफ, मौला गलती हो गई माफ फरमा, अल्लाह हमसे गलती हो गई माफ फरमा। तो ये खैर और शर दोनों को अल्लाह ताला इसलिए रखा है ताकि हमारी आजमाइश हो। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कुरान कहता है माल और औलाद ये फितना है। फितना ये दुनिया में जो उर्दू में बोला जाता है वो मफहूम नहीं है। फितनतुन के माना है आजमाइश, आजमाना। अल्लाह ताला एक शख्स को बहुत ज्यादा माल देता है, आजमाता है, देखता हूँ ये मेरे गरीब बंदों को देता है या नहीं देता है, ज़कात देता है या नहीं देता है, रिश्तेदारों की मदद करता है या नहीं करता है, गरीब रिश्तेदारों की देख रेख करता है या नहीं करता है, पड़ोसियों के साथ कैसा पेश आता है, वो दे करके आजमाता है। और कभी ना दे करके आजमाता है, एक शख्स को गरीब रखता है, ना दे करके आजमाता है कि नहीं दिया हूं तो अब ये देखता हूं ये क्या करता है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला दो चीजों को बनाया है हमारे आजमाइश के लिए। तो खैर और शर ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, इन पर भी ईमान लाना आपका और हमारा फरीजा है। 6 चीजें हो गई। आमनतु बिल्लाही, अल्लाह ताला पर ईमान लाना। नंबर 2 फरिश्तों पर ईमान लाना। नंबर 3 आसमानी किताबों पर ईमान लाना। नंबर 4 रसूलों पर ईमान लाना। नंबर 5 तकदीर पर ईमान लाना। आमनतु बिल्लाहि मलाइकतिही कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर। 5वीं चीज आखिरत के दिन, जजमेंट के दिन। 6ठी चीज तकदीर वल यौमिल आखिर क़द्री व शर्रि मिनल्लाहि ताला वल बास बादल मौत, बास बादल मौत। 7वीं चीज, लास्ट चीज, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है हमको। ये मत ख्याल करो मर गया, सर गया, गल गया, खत्म। मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है और जो हमने किया है इसका जजा या सजा हमको मिलना है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के मकाम को फरिश्तों से भी बढ़ के रखा। अगर इंसान नेक अमल करेगा तो कैसा? फरिश्ते नूरानी मखलूक है, अच्छे मखलूक है, कभी गुनाह नहीं होता। जन्नत में इंतजामात करने वाले कौन है? फरिश्ते। फरिश्ते इंतजाम करेंगे, हम क्या करेंगे? आराम से बैठे रहेंगे। वेटर के काम कौन करेंगे? फरिश्ते। तो एक शख्स जब 5 स्टार होटल में जाता है तो उसका बड़ा दर्जा है या वेटर का दर्जा है? मैं एक मिसाल दे रहा हूं सिर्फ। जो 5 स्टार होटल में जाता है उसका बड़ा दर्जा है या वेटर का दर्जा है? जो जाते हैं, हम जाते हैं 5 स्टार होटल में, हमारा दर्जा है ना बड़ा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे खिदमत में उनको लगा रखे, किंतु फरिश्तों को हमारे खिदमत में लगा रखे। अगर हमने नेक अमल किया, अल्लाह के कहने के मुताबिक जिंदगी गुजारा, रसूल के सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारा, तो आखिरत की जिंदगी हमारे लिए वाह वाही है, आराम की। फरिश्ते हमको सलाम करेंगे, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। अल्लाह ताला हमको सलाम करेंगे, फरिश्ते सलाम करेंगे, अल्लाह सलाम करेंगे। हालांकि छोटे बड़ों को सलाम कर देना, अब आते हैं स्कूल, आते हैं टीचर को गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, टीचर आपको बोलते हैं, टीचर को आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं, आप छोटे हैं, बड़ों को सलाम करना। लेकिन हम जो है एक बंदा है, अल्लाह तबारक व तआला हमको सलाम करेंगे जन्नत में। कितना बड़ा दर्जा देंगे अल्लाह ताला हमारा, इतना बड़ा दर्जा देंगे अल्लाह तबारक व तआला हमको। अल्लाह ताला हमको सलाम करेंगे, अस्सलामु अलैकुम या इबादी, ऐ मेरे बंदो तुम्हें मैं सलाम करता हूं। और खुदा न खास्ता अगर बद अमाल किया, अल्लाह के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारा, रसूल के जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारा, रसूल के सुन्नतों के खिलाफ अपनी जिंदगी गुजारा, जैसा तुम्हारा नफ्स चाहा उस तरीके से जिंदगी गुजारा, माल को गलत जगह पर इस्तेमाल किया, गलत जगह खर्चा किया, अपने नफ्स को गंदा किया, इस हाल में अगर मौत आई तो तुम्हारी ठुकाई करने वाले, तुम्हें मारने वाले भी फरिश्ते जहन्नम में होंगे।
تو انسان اگر اچھا ہے اس کا درجہ فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ انسان اگر اچھا ہے اس کا درجہ کیا ہے؟ فرشتوں سے بھی بڑھ کے ہو جاتا ہے۔ اور خدا نخواستہ انسان اگر برا ہے انسان اگر برا ہے اس کا درجہ جانور سے بھی بدتر، آخرت میں اس کا درجہ جانور سے بھی بدتر۔ جانور کا حساب کتاب نہیں ہے، جانور جتنے پیدا ہوتے ہیں اس میں سے کچھ جانور ہم جسے کھاتے ہیں ہمارے لیے حلال ہے، اس کو ذبح کرو، ذبح کرنا گناہ نہیں ہے، کھاتے ہیں، وہ مر گیا اس کے لیے حساب کتاب بھی نہیں ہے، جانور کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، لیکن انسان کے لیے حساب کتاب ہے۔ اگر دنیا میں اس نے بدماشی کی، گنڈا گردی کی، نفس پروری کی، حسد کیا، بغض کیا، لوگوں سے جلا کینہ کپٹ کیا، تو اس کے لیے جہنم ہے، اور جہنم میں فرشتے اس کو ہنٹر لگانے والے ہیں، طرح طرح کی سزا میں اس کو ملوث کرنے والے ہیں۔ ان سزاؤں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، ہم جیسے امتی کے لیے ہمیشہ روتے رہے اور طرح طرح کے فرمان جاری کرتے رہے کہ میرے امتی، آخری وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے بارے میں کہتے کہ کبھی نماز نہیں چھوڑنا، کبھی نماز نہیں چھوڑنا۔ آخری کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری کلمات تھے، دو نصیحتیں تھی۔ آپ جب پردہ فرما رہے تھے دو نصیحتیں تھی آپ کی، سنو غور سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دو نصیحتیں کیا ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دو نصیحتیں کیا ہے تو کچھ بولنا۔ آخری دو نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے تھی، اے میرے امت، کبھی نماز نہیں چھوڑنا، کبھی نماز نہیں چھوڑنا، خدا کے واسطے آپ بھی نماز مت چھوڑو۔ اور دوسری چیز تھی اپنے کمزوروں کو مت ستانا، اپنے سے کمزور جو ہے اس کو مت ستانا۔ یہ دو آخری کلمات تھے۔ اس کے بعد سب سے آخری کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا، اللہ رفیق الاعلیٰ، اللہ رفیق الاعلیٰ۔ یہ آخری کلمہ کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تو جاری رہے گا قیامت تک، اس پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، سمجھ رہے نا؟ آپ ایک اچھا انسان بنیے، اچھا امتی بنیے، اچھا ناگرک بنیے، اچھا دوست بنیے، اچھے اولاد بنیے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ ابھی اچھے ہوں گے تو آنے والی جو آپ کی زندگی ہے انشاءاللہ وہ اور اچھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اگر ابھی آپ اچھے ہوں گے تو آنے والی زندگی ہے، کبھی آپ باپ بننے والے ہیں نا، ابھی بیٹا بیٹی ہے، بعد میں باپ اور ماں بننے والے ہیں نا آپ۔ جو آپ کریں گے اپنے ماں باپ کے ساتھ وہی آپ کے اولاد پھر آپ کے ساتھ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کو مت ستاؤ۔ آپ جس دن ماں باپ بنو گے آپ کو ستائیں گے۔ اپنے ٹیچروں کو مت ستاؤ، اپنے ٹیچر کی عزت کرو، ان کی عزت کرو۔ خدا کی قسم میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کے کہہ رہا ہوں، میں اپنے استادوں کو آج بھی دیکھ لیتا ہوں، حالانکہ میری 45 سال کی عمر ہو گئی، اپنے استادوں کو، اپنے ٹیچروں کو آج بھی دیکھتا ہوں، ان کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتا ہوں، ان کے سامنے بیٹھنے کی مجھے ہمت نہیں ہوتی ہے۔ تو ماں باپ تو اولاد کو پیدا کر دیتے ہیں، اولاد کو انسان ٹیچرز بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ماں باپ تو پیدا کر دیتے ہیں، ان کی ضروریات پورا کر دیتے، کھلاتے پلاتے اڑاتے پہناتے ہیں۔ ایک انسان کو انسان، ایک ذمہ دار انسان ٹیچر بناتے ہیں۔ ٹیچروں کی عزت کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے صحت کے لیے دعا کرو، ان کے گھر کے برکت کے لیے دعا کرو۔ اس دنیا میں سب سے کمزور طبقہ، سب سے کمزور معاشی اعتبار سے ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کی برکت کے لیے دعا کرو، ان کی صحت کے لیے دعا کرو، اپنے ٹیچروں کی عزت کرو، اپنے اسکول کی عزت کرو، اپنے اسکول کے ہر چیز سے آپ کو محبت ہونی چاہیے۔ یہ جو علم ہے یہ بہت بخیل ہے، کنجوس ہے، سمجھ رہے آپ؟ بہت کنجوس ہے یہ علم، حد سے زیادہ کنجوس ہے،
दुनिया की सबसे कंजूस चीज है इल्म। उसके पीछे आप अपनी जिंदगी को खपा दो तो थोड़ी सी देता है इल्म। और अल्लाह ताला का सिफाती नाम में से एक नाम है अलीम, इल्म से बना है अलीम, बहुत ज्यादा जानने वाला। तो सारे उलूम अल्लाह के पास है, उसमें से थोड़ा सा हमको देता है। अपनी किताबों से मोहब्बत कीजिए, अपने क्लासरूम से मोहब्बत कीजिए। स्कूल के हर चीज़ से आपको मोहब्बत होनी चाहिए, स्कूल से मोहब्बत होनी चाहिए, स्कूल के अपने क्लास फ्रेंड से मोहब्बत होनी चाहिए, और हर चीज़ से बढ़ कर के अपने टीचर्स के, अपने प्रिंसिपल के, अपने जिम्मेदारों से, इन सब से आपको मोहब्बत होनी चाहिए। एक जिम्मेदार इंसान के अंदर ये तो हर हाल में होना ही चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह, इन बातों पर अमल करेंगे, 7 चीज़ों पर हमारा ईमान होगा इंशाअल्लाह। कुरान करीम के जो चीज़ें हैं उन पर हमारा अमल होगा इंशाअल्लाह। दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमें कहने सुनने तथा अमल के तौफीक अता फरमाए। दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिवालिदैना व लिजमीइल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन करीबुम मुजीबुद दावात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे अगले पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारे लग़ज़िशों को माफ़ फरमा। मौला, जो गुनाह जानबूझ करके की है, अनजाने में की है, दिन के उजाले में की है, रात के अंधेरे में की है, मेरे मौला सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। परवरदिगार आलम, क़यामत के दिन तेरे नबी के सामने हमारी हाज़िरी होगी, वहाँ पर हमें तेरे नबी के सामने शर्मिंदगी ना होना पड़े। मौला, नेक आमाल की तौफीक अता फरमा, बद आमल से हमारी हिफाज़त फरमा। मौला परवरदिगार आलम, हमें उलूम दीनिया, उलूम दुनिया सब कुछ पूरे तौर पर अता फरमा, पूरा पूरा हिस्सा वाफर अता फरमा। अल्लाहुल आलमीन, तेरे नबी के सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। मौला, तेरे नबी ने जिन जिन बुराइयों से पनाह मांगी थी, उन बुराइयों से हमें भी पनाह फरमा। तेरे नबी ने जिन जिन खैर के बारे में तुझसे सवाल किया था, मौला उन सारी खैर और खूबी में हमारा भी हिस्सा वाफर अता फरमा। मौला, हमारे रिश्तेदारों में से तमाम मरहुमीन मरहुमात की मग़फ़िरत फरमा, उनकी बख्शिश फरमा। या अल्लाह, हमारे असातिज़ा की हिफाजत फरमा। मौला, हमारे टीचरों के उम्रों में बरकत अता फरमा, उन सब को सेहत आफ़ियत अता फरमा। इस स्कूल के तमाम ज़िम्मेदारों को सेहत आफ़ियत अता फरमा, इनमें दीन दूनी रात चौगुने तरक्की अता फरमा। परवरदिगार आलम, हमारे इन टूटे फूटे दुआओं को महज अपने फضل करम से और अपने प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही व अहलि बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।